Today we are going to start with the revision of the chapter internal trade. So let us first of all discuss the learning objectives of this chapter. That is, after studying this chapter, you'll be able to know about what exactly is internal trade, what are the various types of internal trade, that is wholesalers and retailers we will study about, and then we will also study about the services which are being provided by the wholesalers and by the retailers to their upper links. So after that we will be studying about the types of retailers, which are broadly categorized into fixed shop retailers and itinerant retailers. So itinerant retailers part has been deleted from your syllabus for this very session. So we won't be studying about itinerant retailers. We will be studying only about fixed shop retailers, which we further classify as fixed small shop retailers and fixed large shop retailers, right? After that, there is one, Chamber of Commerce and Industry, which has been organized, developed to, or formed to develop the internal trade in India. So we'll be discussing its role. And then the GST and its feature, I guess they also have been deleted from the syllabus this very time. So starting from the meaning of internal trade, you all are aware of the meaning of internal trade, bete. Buying and selling of goods and services within the boundaries of the nation is referred to as internal trade. Whenever we indulge in the transactions of buying and selling of either goods or of services, and that too within the geographical boundaries of the country, that is referred to as internal trade. Now, internal trade further can be classified into two broad categories, that is wholesale trade and retail trade. Okay. What is wholesale trade? Wholesale trade refers to the trade in which the huge quantity of the goods is bought by the wholesalers from the manufacturers, and then it is sold to the retailers in smaller lots. After adding, of course, a margin, they sell it to the retailers who further buy it for further resale. ठीक है. So basically wholesaler जो चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में एक चेन हम बोलते हैं, जिसमें नंबर 1 जो है वो मैन्युफैक्चरर है. ऑफ कोर्स गुड्स बनेंगे, मैन्युफैक्चर होंगे, तभी आगे डिस्ट्रीब्यूट होंगे. मैन्युफैक्चरर गुड्स जो है वो होलसेलर को बेच देता है. होलसेलर मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेता है, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स लेता है और उसको फर्दर स्मॉलर लॉट्स में जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उतनी रिटेलर, डिफरेंट रिटेलर्स को बेच देता है. रिटेलर्स फर्दर अल्टीमेट कंज्यूमर को स्टिल स्मॉलर क्वांटिटी में वो गुड्स बेच देते हैं. तो ये जो चेन है, ये जो मिडिल मैन है, उसमें फर्स्ट लिंक जो है वो होलसेलर है. तो होलसेलर इज बेसिकली द लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर. ठीक है. सो wholesaling basically is concerned with the activities of those people, those establishments, which sell to retailers. ठीक है. और टू अदर मर्चेंट्स, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, इंस्टीट्यूशनल एस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी कमर्शियल यूजर्स हैं जो कि फर्दर सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में अल्टीमेट कंज्यूमर को नहीं बेचते हैं. ठीक है. तो बेसिकली होलसेलर जो है दे इनेबल द प्रोड्यूसर टू रीच टू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स which are spread over wide geographical area. बेटे जो बायर्स हैं वो वाइड जियोग्राफिकल एरिया में स्प्रेड है. तो एक प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल नहीं है, अगर वो चॉकलेट्स बनाता है, चिप्स बनाता है, बिस्किट्स बनाता है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरी कंट्री के बायर्स तक वो रीच कर सके.
तो उन तक रीच करने के लिए उसको एक पर्सन की जरूरत है, विच इज ए होल सेलर। ठीक है, सो बेसिकली wholesaler enables the manufacturer to reach large number of buyers who are spread, in a vast geographical area. ठीक है, so होलसेलर जो है, क्योंकि लिंक है बेटे प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में, तो इसका मतलब इट प्रोवाइड सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर एज वेल एज टू द रिटेलर. Now we will be discussing the services which are provided by the wholesaler to the manufacturer. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ये परफॉर्म करता है, मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट देता है, सर्विस देता है, वो ये है कि ये मैन्युफैक्चरर के लिए पॉसिबल करता है कि वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सके. नाउ सबसे पहली बात, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना एक बेनिफिट कैसे है बेटे? आप नो डिनाइंग द फैक्ट, एवरीवन इज अवेयर कि जब भी हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं. उन बेनिफिट्स को हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं. ठीक है, जब भी लार्ज स्केल पे काम किया तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल. उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है. ठीक है, जिसके कारण आप अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं. सो हर प्रोड्यूसर लार्ज स्केल पे काम करना चाहता है. तो लार्ज स्केल पे काम तभी कर पाएगा अगर उसके गुड्स की डिमांड होगी या उसको पता हो कि हाँ मेरे गुड्स इतने बिक जाएंगे. ठीक है, तो होलसेलर क्या करता है बेटे? होलसेलर डिफरेंट रिटेलर से ऑर्डर्स कलेक्ट कर लेता है एंड ही passes on this pool of small orders. ये जो पूल हो गया ना, पूलिंग होगी. पूलिंग मीन्स इकट्ठा हो गया. हर रिटेलर ने उसको ऑर्डर दे दिया, किसी ने 10 पेन का दिया, किसी ने 100 का दिया, किसी ने 1000 का दिया. उसने वो सबसे ऑर्डर ले लिया और वो इकट्ठा करके पास ऑन कर दिया मैन्युफैक्चरर को. तो मैन्युफैक्चरर के पास एक आइडिया हो गया कि हाँ इस साल मैं इतनी प्रोडक्शन कर सकता हूं क्योंकि मुझे होलसेलर ने इतने का ऑर्डर दिया हुआ है. ठीक है, सो इट फैसिलिटेट्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन. ठीक है, ही इज लाइक एबल टू प्रोड्यूस द गुड्स ऑन लार्ज स्केल एंड देयरबाय टेक द एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ये सबसे बड़ा बेनिफिट है किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए. आप उसके पास जाओगे ना, भाई मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, वो कहेगा मेरे को ऑर्डर दिलवा दो बड़ा. ठीक है, तो यही काम होलसेलर करता है. वो छोटे छोटे ऑर्डर रिटेलर से कलेक्ट कर लेता है और उनका पूल्ड अमाउंट जो है वो पास ऑन कर देता है होलसेलर को, thereby enabling him to produce on large scale and take the benefits of economies of scale. Right, so he facilitates large scale production. Clear? Second service which is provided by the wholesaler to the manufacturer is bearing risk. Now when the wholesale merchants, they give the order, they as soon as their order is ready, it is processed, they become the owner of the goods. They make the payment to the manufacturer and they buy the goods. Now goods are in their own name, so whatever the risk is there, like the goods may get spoiled during the transit, goods may get stolen, right, or goods may even go out of fashion. So this risk or the price of the goods may fall down. This risk is of the wholesaler. Manufacturer, once he passes on the title of the goods, ownership of the goods to the wholesaler, he is free. Again, I will take the example of lockdown. When say लॉकडाउन लगा मार्च में, ठीक है, 22nd 18-19 मार्च से लॉकडाउन लगा. उससे पहले सपोज करो एक होलसेलर है, उसने गुड्स खरीदे, रिलायंस कंपनी से उसने गुड्स खरीद लिए, या उसने सपोज करो सैमसंग से मोबाइल फोन खरीद लिए कि भाई मेरे को 500 मोबाइल का ऑर्डर आया हुआ है, तो सैमसंग ने उसको 500
मोबाइल बेच दी, उससे कैश ले लिया, ठीक है। अब कल को क्या हुआ, रिटेलर्स ने आना था उससे लेने के लिए, या उसने रिटेलर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने जाना था, कर्फ्यू लग गया, कोई रिटेलर नहीं आया उसके पास तो स्टॉक धरा का धरा पड़ा रह गया। 3-4 महीने निकल गए, रिटेलर्स 3-4 महीने बाद आए, ठीक है। बाय दैट टाइम प्राइसेस भी गिर गए, ठीक है, कोई मॉडल पुराने हो गए। अब ये जो रिस्क है ये किसका, सैमसंग वालों ने तो बेटे बेच दिए होलसेलर को, वो फ्री हो गए। अब जिसकी ओनरशिप है रिस्क उसको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये रिस्क किसने बियर किया, होलसेलर ने। अगर कोई नुकसान हुआ किसका हुआ, होलसेलर का, ठीक है। तो जो वो रिस्क ले रहा है वो किसका रिस्क उठा रहा है, मैन्युफैक्चरर का। सो इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस इज प्रोवाइडिंग टू द मैन्युफैक्चरर, भाई आई एम बेयरिंग रिस्क, ठीक है। Because I am now dealing with the goods, because he is now dealing with the goods in his own name, so risk also belongs to him. Clear? Next is bit of financial assistance. Now these wholesalers, you know, they provide financial assistance to the manufacturer. How they provide them financial assistance? They generally make payment in cash. कंपनीज जो हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, वो होलसेलर्स को कैश पेमेंट पे ही गुड्स सेल ऑफ करती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि सैमसंग ने होलसेलर को मोबाइल खरीदे और उसी टाइम होलसेलर से चेक ले लिया उतनी अमाउंट का, ठीक है। तो होलसेलर के पास कैश आ गया तो उसका सर्कल, मैन्युफैक्चरर के पास कैश आ गया तो उसका जो सर्कल है वो चलता रहेगा, ठीक है। And sometimes, you know, even manufacturers take advance money from the wholesaler. मैं एक होलसेलर हूँ, मैंने प्रोड्यूसर को फोन कर दिया, भाई इस साल ना मेरे को 2000 मोबाइल फोन चाहिए, तो आपको क्या लगता है, वो कहेगा ठीक है जी हम 2000 बना के आपको दे देंगे। He also needs some assurance. वर्बली बात हुई है तो अब कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं करा सकते, हाँ भी 2000 मैंने तेरे से लेने हैं, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो वो क्या कर सकता है, एश्योरेंस के लिए वो कह सकता है भाई अच्छा ठीक है, फिर 25% मेरे को एडवांस पेमेंट दे दो ताकि मैं आपका ऑर्डर जो है प्रोसेस करना शुरू कर दूं। तो होलसेलर्स जनरली मेक एडवांस पेमेंट्स टू द प्रोड्यूसर्स, इन दिस वे दे प्रोवाइड देम विद फाइनेंशियल असिस्टेंस, राइट। Next is expert advice, because see, wholesaler is in direct contact with the retailer is in direct contact with the consumer. तो उस केस में बेटे कंज्यूमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रिटेलर है और होलसेलर रिटेलर से डील करता है, तो कंज्यूमर अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिटेलर को बता देता है, नहीं भी बता देता तो रिटेलर जज कर लेता है, क्योंकि रिटेलर उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो वो कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस को जज कर लेता है, क्या मार्केट कंडीशंस चल रही हैं, और क्योंकि रिटेलर है, रिटेलर के पास और भी होलसेलर आते होंगे तो उसका कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है, ये सब रिटेलर को नॉलेज होती है। सो रिटेलर की ये जो नॉलेज है इट गेट्स पास्ड ऑन टू द होलसेलर, ठीक है, विच फर्दर यू नो प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू द मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर now he can make changes in the designs of his product according to the taste and preferences of the consumer, or he can make change in marketing strategy. अगर उसको लगता है कि आज का कंज्यूमर प्राइस ज्यादा देने को तैयार है लेकिन वो एक फ्री गिफ्ट चाहता है, वो चाहता है कि उसको एक स्क्रैच कार्ड मिल जाए, ऐसी वाली स्कीम से वो अट्रैक्ट हो रहा है और उसका कॉम्पिटिटर यही पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, when he comes to know about these things he will follow that, ठीक है। सो उसकी जो सेल है वो बढ़ जाएगी, वो मार्केट में उसका बना रहेगा, he will be maintaining his position in the market with the help of expert advice which is provided by the wholesaler. Next है बेटे helps in marketing function. So goods की जो distribution है वो एक important task itself, marketing का एक part है goods की distribution. Why are the producers producing the goods? Ultimate aim is to sell off those goods and earn profit.
but then distribution is quite, we can say it's a complicated process because the consumers are spread over the vast geographical area. So if the wholesaler is absent, इस ये सिनेरियो में से, सीन में से नहीं निकल जाता है, तो देखो मैन्युफैक्चरर के लिए कितना मुश्किल है कंज्यूमर तक रीच करना, ठीक है। लेकिन क्योंकि होलसेलर है, वो मैन्युफैक्चरर को रिलीव करता है इस बर्डन से कि वो उससे गुड्स लेके और अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प कर रहा है. सो इन दिस वे ही इज रिलीविंग हिम of this burden, that is he is helping him in marketing function. Next service is facilitating production continuity. बेटे प्रोडक्शन की कंटिन्यूटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, स्पेशली फर्म्स इंगेजिंग इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन. अगर कहीं पर भी कंटिन्यूटी रुक जाती है, लेट अस सपोज आपको सेलर ने, प्रोड्यूसर ने ऑर्डर दे दिया वर्कर को, भी अभी तो गुड्स की डिमांड ही नहीं हो रही है, ऐसे करो प्रोडक्शन बंद करो, घर जाओ, इस महीने की वेजेस नहीं मिलेंगी. तो बेटे यहाँ अगर वेजेस देनी भी पड़ेंगी आपको, आप काम नहीं ले रहे, वेजेस देनी पड़ रही हैं, या उनको काम से निकाल रहे हो, वेजेस नहीं दे रहे, तो अगली बार आपको लेबर कहाँ से मिलेगी, ठीक है. तो कोई भी मतलब काम में अगर आप रुकावट डालते हो, प्रोडक्शन को फुल स्टॉप लगाते हो या कॉमा लगाते हो, दैट इज दैट इनकर्स लॉसेस. कभी आपने न्यूज हेडलाइन में पढ़ा ये कि आज के भारत बंद हुआ और इकोनॉमी को इतने करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, ठीक है. वो इसीलिए होता है क्योंकि प्रोडक्शन की कंटिन्यूटी रुक जाती है, ठीक है. तो प्रोडक्शन की कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है. अब प्रोडक्शन कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए आपको अपने गुड्स की डिमांड पता होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि हाँ भी कितने गुड्स का ऑर्डर हमें आने वाला है. तो होलसेलर यही करता है बेटे, आपको जो है गुड्स का ऑर्डर ला के देता है. जैसे ही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो आपसे खरीद लेता है और अपने वेयर हाउसेज में रख लेता है, और आगे तक ताकि आपका सर्कल आगे चलता रहे, आप रॉ मटेरियल मंगवा के फर्दर प्रोडक्शन करते रहे, होलसेलर को देते रहे, ठीक है. क्योंकि उसको अपने गोडाउन में कुछ नहीं दिख रहा. अब जब उसको अपने गोडाउन में दिखेगा ना, अरे अभी तो इतना स्टॉक पड़ा, आगे क्या करेंगे बनवा के, तो प्रोडक्शन की कंटिन्यूटी रुक सकती है. बट बिकॉज wholesaler takes the goods as and when they are produced, he keeps them in his own warehouses, so it facilitates production continuity. Another function storage बेटे, वही जैसे ही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं मैन्युफैक्चरर उसको ईमेल कर देता है कि भी आपके गुड्स ऑर्डर प्रोसेस हो गया है, वो बता देता है कि मेरे को इस एड्रेस पे सेंड कर दो, ठीक है. तो as soon as गुड्स आर रेडी, they are packed, so they are sent through whatever means of transport decided by both of them. by road जाने हैं, by rail जाने हैं, वो होलसेलर के एड्रेस पे उसको कंसाइनमेंट को भेज देता है. उसके बाद वो फ्री हो गया. अब इसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, आगे रिटेलर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सारी हेडेक होलसेलर की है. So these are the services which are provided by the wholesaler to the manufacturer. Now we will be discussing the services which the wholesaler provides to the retailer. क्योंकि बेटे ये इससे गुड्स लेता है और इसको देता है, ठीक है. तो इसका मतलब ये इनके लिए भी कोई फंक्शंस परफॉर्म करता है, कोई सर्विसेज इनको भी ऑफर करता है. तो सबसे पहली सर्विस यही है बेटे, ये इससे गुड्स लेके इसको दे रहा है, that is it is ensuring the availability of goods. Retailers should always maintain an adequate stock of goods with them. Who makes it who ensures that there is a adequate availability of goods with the retailer at all the points of time? Wholesaler. Think of a time when you went to any particular shop, any shop, and you asked के भाई आपको मोबाइल लेना है, आप एक शॉप पे गए, पहले तो आपने पूछा आसपास कहाँ से लें, तो जिसने भी आपको कोई भी शॉप रिकमेंड की तो उसका रीजन क्या बताया होगा कि उसके पास हर तरह का ब्रांड अवेलेबल होता है, ठीक है, और वो आपको गाइड भी कर देता है अच्छे से, तो जो भी आप मॉडल चाहते हो उसके पास जनरली होता है. विच मीन्स जब भी आप किसी भी रिटेलर के पास जाते हो,
आप ये एक्सपेक्ट करके जाते हो कि उसके पास गुड्स का स्टॉक होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए गुड्स की। आज का कंज्यूमर तो वैसे ही बहुत बिगड़ गया है, तो वो तो अगर आपने शूज भी लेने जाना है ना, तो आप 10-15 शूज देखोगे, उसके बाद डिसाइड करोगे कि मैं कौन सा लूं। 1-2 शूज देख के आपको कोई शूज पसंद नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब रिटेलर को एडिक्वेट स्टॉक रखना पड़ेगा। तो वो एडिक्वेट स्टॉक रख पाए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? होलसेलर, ठीक है। अगर होलसेलर ना होता बेटे, इसको अलग अलग मैन्युफैक्चरर के पास जाके उससे स्टॉक लेना पड़ता। लेट अस सपोज फुटवियर में वो डील कर रहा है, तो कंज्यूमर कभी कहता है अच्छा एडिडास के दिखाना, कभी प्यूमा के दिखाना, कभी स्केचर्स के दिखाना, ठीक है। तो उसको तो सारे ब्रांड रखने पड़ेंगे। अब ये सारे ब्रांड रखने के लिए उसको अलग अलग मैन्युफैक्चरर से डील करना पड़ेगा। सच बिग हेडेक। वो अपने मार्केटिंग पे ध्यान दे, शॉप पे ध्यान दे, या डीलर वो डील ही करता रहे मैन्युफैक्चरर के साथ। सो बेसिकली होलसेल रिलीव्स हिम ऑफ दिस। वो एक होलसेलर को फोन करता है, उसको कहता है इतने प्यूमा के, इतने एडिडास के और इतने आप मेरे को स्केचर्स के शूज भेज दीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बेटे मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केटिंग सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है? मार्केटिंग में बेटे marketing means, you know, marketing is a wider term which involves lot of functions, not only, you know, selling of goods. How to sell the good, various sales promotional activities, various, you know, advertisement, publicity schemes, जो कि मैन्युफैक्चरर टाइम टू टाइम करता रहता है, उसमें पूरी पूरी हेल्प करता है रिटेलर, ठीक है। कई बारी हम एक स्कीम निकाल देते हैं कंज्यूमर के लिए, बाय टू गेट दिस फ्री, तो रिटेलर उसका सपोर्ट करते हुए हर स्कीम को, यू नो, रिलीजियसली उसको फॉलो करता है। कई बारी ऐसी स्कीम आती है कि न्यूज़पेपर का ये कूपन लेके आओ, उसके साथ अगर लेके आओगे तो वी विल गिव यू दिस मच ऑफ द डिस्काउंट। तो ये सारी चीजें वो रिटेलर उसका सपोर्ट करता है, जिससे कि गुड्स की मार्केटिंग अच्छी हो जाती है। देन ग्रांट ऑफ क्रेडिट। होलसेलर बेचारा एक तो एडवांस पेमेंट देता है मैन्युफैक्चरर को, दूसरा कई बारी वो रिटेलर को भी गुड्स क्रेडिट पे दे देता है, क्योंकि रिटेलर कहता है भी मैंने तो देखो इतना स्टॉक मेंटेन करके रखना है, मैं कहाँ से इतने पैसे ले आऊं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो जैसे कल हमने एक चैप्टर पढ़ा था सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसमें एक था सोर्स ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट यही है ना, सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड नॉट एट इमीडिएट पेमेंट। जब आप किसी से भी गुड्स प्रोक्योर करते हो और इमीडिएट पेमेंट नहीं करते हो, वो ट्रेड क्रेडिट है, ठीक है। तो इसी तरह से रिटेलर जो है वो होलसेलर से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का क्रेडिट ले लेता है। तो उससे क्या होता है, ही इज एबल टू, यू नो, फिल द स्टॉक इन हिज शॉप। स्टॉक भी आ गया, कैपिटल भी नहीं लगी, और जब गुड्स बिके तब होलसेलर को वो पेमेंट कर देता है, ठीक है। सो इसका मतलब रिलेटिवली, यू नो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से उसका अच्छा काम चलता जाता है। किसके सहारे चल रहा है? होलसेलर के सहारे चल रहा है। क्यों? क्योंकि होलसेलर उसको ट्रेड क्रेडिट ग्रांट कर रहा है। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड नॉलेज। Now wholesalers, they are generally, you know, they deal in one line of products. जैसे मोबाइल में डील करते हैं, तो मोबाइल का होलसेलर है, मतलब उसके पास हर ब्रांड का मोबाइल ही होगा, ठीक है। या इलेक्ट्रॉनिक्स का होलसेलर है, लैपटॉप्स भी, मोबाइल्स भी, ठीक। या फुटवेयर का होलसेलर है तो सिर्फ फुटवेयर होंगे, क्लॉथ्स का होलसेलर है तो सिर्फ क्लॉथ्स होंगे। अगर किड्स गारमेंट्स का है होलसेलर, तो किड्स गारमेंट्स में स्पेशलाइज करेगा, उसी में डील करेगा। सो बिकॉज दे डील इन वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, दे नो द पल्स ऑफ द मार्केट। उनको मार्केट की पल्स, मतलब मार्केट की हेल्थ के बारे में पता रहता है। तो ये जो, यू नो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, दे इवन पास ऑन टू दी रिटेलर्स। वो रिटेलर को जब गुड्स देते हैं, रिटेलर अगर लेटर सपोज नया रिटेलर है, नई उसने शॉप खोली है, वो कहता है मेरे को ये वाले प्रोडक्ट दे जाओ, तो होलसेलर उसको बता देता है भी ये वाले प्रोडक्ट मत ले,
मार्केट में जो हवा चल रही है आजकल, यूथ मोबाइल ले रहा है, और क्योंकि यूथ को सेल्फी खींचने का ज्यादा है, तो जिसका फ्रंट कैमरा अच्छा ना, दैट मोबाइल यू शुड फोकस ऑन, बाकी के फोन नहीं बिकेंगे तेरे, ठीक है। तो ये जो नॉलेज उसने गेन की है, क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट लाइन में स्पेशलाइज कर रहा है, वो रिटेलर को पास ऑन कर देता है। जो भी नया प्रोडक्ट आता है, नए प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, उसको क्या फीचर को इनकैश करना है, तो क्या कह के बेचना है, किस प्राइस पे बेचना है, उसको अपना रिटेल का डेकोर कैसा होना चाहिए, किस तरह से नए प्रोडक्ट्स किस जगह पे डिस्प्ले करने चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है और वो रिटेलर को गाइड कर देता है। एक्सपीरियंस मीन्स अ लॉट, तो एक्सपीरियंस अपना वो पास ऑन करता है रिटेलर को। नेक्स्ट इज रिस्क शेयरिंग। तो ऑब्वियसली क्योंकि जो होलसेलर हैं वो बल्क में परचेज करते हैं और रिलेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज में रिटेलर्स को दे देते हैं, तो रिटेलर्स क्योंकि स्मॉलर क्वांटिटी में खरीद पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कभी भी जरूरत पड़ेगी तो वो होलसेलर से झट मंगवा लेंगे, ठीक है। आप कभी किसी शॉप पे गए और आपने कहा कि ये केमिस्ट पे गए, आपने कहा मेरे को ये मेडिसिन चाहिए, तो वो कहता है अच्छा शाम को ले जाना, उसी टाइम वो अपनी एक छोटी सी नोटबुक खोलता है और वहां पे नोट डाउन कर लेता है, क्योंकि उसने शाम को फोन करना है होलसेलर को, तो जितनी भी दवाइयों की आज की डिमांड आई है उसने उसको फोन करना और होलसेलर ने उसको पकड़ा जानी है, ठीक है। तो इसीलिए वो अपने पास स्मॉलर क्वांटिटी मेंटेन करके रखता है कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो होलसेलर को कह के वो मंगवा लेगा। तो क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटी रखता है बेटे, तो उसका रिस्क भी कम है। कल को ये गुड्स जो हैं ऑब्सोलीट हो गए, इनके प्राइसेस कम हो गए, ठीक है, जैसे लॉकडाउन लग गया था, तो अगर आपके पास स्टॉक कम था तो ऑब्वियसली यू वर एट लेसर रिस्क, ठीक है। तो वो अपना रिस्क जो है उसका शेयर हो जाता है, क्योंकि लार्जर स्टॉक इज मेंटेन बाय द होलसेलर। वो कहता है होलसेलर के पास तो है ही है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है इतने गुड्स उससे लेने की, जब जरूरत होगी तो मैं उठा लूंगा, ठीक है। तो इन दिस वे रिस्क इज ऑल्सो शेयर्ड। क्लियर? एनी चाइल्ड हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? ओके, सो रिटेल ट्रेड सेकंड है बेटे, रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड, रिटेलर कौन है? वो ये वही बिजनेस एंटरप्राइज है which is engaged in the sale of goods and services to the ultimate consumer. He buys goods from the wholesaler and sells in smaller quantity to the ultimate consumer, ठीक है। The retailer is the final stage in the distribution. जो डिस्ट्रीब्यूशन की चेन है उसमें लास्ट लिंक जो है वो रिटेलर है। क्यों? क्योंकि रिटेलर जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है। दिस अल्टीमेट कंज्यूमर कुड बी ही मे बी यूजिंग इट फॉर इट्स पर्सनल यूज। फॉर एग्जाम्पल आपने पेन खरीदा, ठीक है, अल्टीमेट यूज के लिए, यू आर द अल्टीमेट कंज्यूमर। और मैंने चौक खरीदा, जब लॉकडाउन थे मैंने चौक का बॉक्स लेके आई, वो मैं अल्टीमेट यूजर होगी इसकी, पर्सनल यूज के लिए मैंने खरीदा। और स्कूल जब चौक खरीदता है वो बिजनेस यूज के लिए खरीदता है, लेकिन किससे खरीदता है? रिटेलर से, तो वो अल्टीमेट कंज्यूमर है, ठीक है। सो रिटेलर जो है वो पर्सन है, वो बिजनेस एंटिटी है जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज सेल ऑफ करता है, ठीक है। अब किस तरह से वो गुड्स को बेचता है बेटे, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हम जरूरी नहीं है कि एक रिटेलर वही है जिसकी एक शॉप है, ठीक है। रिटेलर में सेल द गुड्स पर्सनली ऑन टेलीफोन और थ्रू वेंडिंग मशीन और थ्रू ऑनलाइन, और he can directly sell at consumers home or in a store or any other place, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, any kind of way he may adopt to sell the goods to the ultimate consumer। मतलब जिससे अल्टीमेट कंज्यूमर गुड्स खरीदता है वो रिटेलर है,
किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपको फोन करके किसी ने कहा कि भी मैंने ये आज ये सब, आजकल आपने देखा होगा काफी सारी लेडीज जो हैं घर में बैठे कुकिंग करके और टिफिन बना के बेच रही हैं, या कोई भी पिज्जा नूडल्स बना के, तो somebody called you up and said कि आज नूडल्स बनाए हैं तो shall I send you, आपने कहा ठीक है 2 प्लेट भेज देना, ठीक है, उसने 2 प्लेट भेज दी, आपने पैसे दे दिए, वो क्या हो गया, रिटेलर हो गया जिसने आपको भेजे। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेट कंज्यूमर को बेच रहा है, ठीक है। So because retailer is the link between wholesaler and consumer, he provides services to the wholesaler as well as to the consumer. So we'll discuss these services. First of all, these services provided by the wholesaler to the manufacturer or wholesaler. Manufacturer or wholesaler, इसको हम oblique करके करेंगे। First is it helps in the distribution of goods and सर्विसेज। बेटे वही बात हो गई, लार्ज स्केल पे वो प्रोडक्शन करता है और किसको बेचनी है, कंज्यूमर को। कंज्यूमर इज स्प्रेड ओवर द वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया। तो अगर रिटेलर्स ना हो बेटे इस चेन में, तो कितना मुश्किल हो प्रोड्यूसर या होलसेलर के लिए फाइनल कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाना। क्यों? क्योंकि फाइनल कंज्यूमर्स दे आर स्प्रेड ओवर वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया। So thus, by buying the goods from the manufacturer and making it available to the ultimate consumer, they are providing place utility. Another service which is provided by the retailer to the wholesaler is personal selling. Bete, there are certain goods in which personal selling is required. Personal selling का मतलब है आप फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करके कंज्यूमर के साथ उसको कन्विंस करो ताकि वो आपके गुड्स खरीदने में कन्विंस हो जाए, ठीक है। सो बाय अंडरटेकिंग पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स द रिटेलर्स रिलीव द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस एक्टिविटी, ठीक है। अब क्योंकि ये तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर नहीं सकता कंज्यूमर को, रिटेलर ही है जो इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो ये इसको कन्विंस कर सकता है, उसको गुड्स की यूज बता सकता है या उसकी डिमांड क्रिएट कर सकता है। बेटे कहते हैं असली सेल्समैन वही है जो किसी पर्सन को ऐसा गुड बेच दे जिसकी मार्केट में जिसकी उसको रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, ठीक है। तो और कई गुड्स ऐसे होते हैं जिसकी लोगों को रिक्वायरमेंट होती है लेकिन उनको बतानी पड़ती है कि भाई हाँ ये देखो कितना यूजफुल है, आपका टाइम सेव होगा, ये करेगा आपके लिए, वो करेगा। सो इन दिस वे पर्सनल सेलिंग इज रिक्वायर्ड इन सेलिंग सर्टेन गुड्स, और जो कि रिटेलर ही कर सकता है, राइट।